پاک انگلینڈ ٹیسٹ سیریز پاکستان کو ایک اننگز اور 47 رن سے بدترین شکست. پہلا موقع ہے کہ پہلی اننگز میں 500 سے زائد رنز بنانے کے باوجود کسی ٹیم کو اننگز کی شکست ہوئی. پاکستانی ٹیم دوسری اننگز میں 220 رنز پر ڈھیر. عامر جمال اور سلمان علی آغا کی 109 رنز کی پارٹنرشپ بھی پاکستان کو شکست سے نہ بچا سکی. سلمان علی آغا 63 رنز بنا کر آؤٹ. عامر جمال کے ناٹ آؤٹ 55 رنز بھی رائے گا. سعود شکیل 29, سائم ایوب 25, محمد رضوان 10, بابر اعظم 5 اور کپتان شان مسعود 11 رنز بنا کر آؤٹ. انگلینڈ نے 21ویں صدی میں ایک اننگز میں سب سے زیادہ 823 رنز کا ریکارڈ بنا ڈالا. انگلش ٹیم نے پاکستان کے خلاف ویسٹ انڈیز کا 790 رنز کا 66 سالہ ریکارڈ بھی توڑ ڈالا. ہیری بروک نے 317, جو روٹ نے 262 رنز کی شاندار اننگز کھیلی. انگلش ٹیم نے چوتھے دن پہلی اننگز 823 رنز 7 وکٹ پر ڈکلیئر کر دی. نسیم شاہ اور سائم ایوب نے 2 وکٹیں حاصل کی. پاکستان کرکٹ بورڈ نے محمد یوسف کی ریٹائرمنٹ کے بعد قومی سلیکشن کمیٹی ازسر نو تشکیل دینے کا فیصلہ کر لیا. ذرائع کے مطابق سابق کرکٹر عاقب جاوید اور اظہر علی کو نئی سلیکشن کمیٹی میں شامل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. سابق فاسٹ بولر عاقب جاوید کو کنوینر اور اظہر علی کو یوتھ ڈیولپمنٹ کی بھی ذمہ داری ملنے کا امکان. ذرائع کا کہنا ہے کہ سابق آئی سی سی امپائر علیم ڈار اور ڈیٹا انالسٹ حسن چیمہ بھی سلیکشن کمیٹی میں شامل ہوں گے. سلیکشن کمیٹی کا باضابطہ اعلان جلد متوقع. وزیر اعظم شہباز شریف کی بلوچستان کے ضلع دکی میں کان کنوں پر دہشت گردوں کے حملے کی شدید مذمت. رپورٹ طلب کر لی. وزیر اعظم کی جاں بحق کان کنوں کے بلند درجات کے لیے دعا. اہل خانہ سے اظہار تعزیت. وزیر اعظم کی زخمی کان کنوں کو بہترین طبی امداد فراہم کرنے کی ہدایت. شہباز شریف کا کہنا ہے ہر قسم کی دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے پرعزم ہے. سپریم کورٹ میں پی ٹی آئی انٹرا پارٹی انتخابات فیصلے کے خلاف نظر ثانی درخواست پر سماعت. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 3 رکنی خصوصی بینچ سماعت کر رہا ہے. محمد علی مظہر اور جسٹس مسرت ہلالی 3 رکنی خصوصی بینچ کا حصہ. پی ٹی آئی وکیل حامد خان نے مصروفیت کے باعث التوا کی درخواست دائر کر رکھی ہے. 13 جنوری 2024 کو پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی انتخابات کالعدم قرار دیے گئے. سپریم کورٹ نے انٹرا پارٹی انتخابات کی بنیاد پر بلے کا انتخابی نشان واپس لینے کا فیصلہ دیا تھا. اسپیکر قومی اسمبلی کے الیکشن کمیشن کو خطوط لکھنے کا معاملہ. چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی زیر صدارت الیکشن کمیشن کا اہم اجلاس جاری. ذرائع کے مطابق اجلاس میں اسپیکر قومی اسمبلی کے حالیہ خط اور پہلے لکھے گئے خطوط کا جائزہ لیا جائے گا. اسپیکر قومی اسمبلی کی طرف سے 2 خطوط لکھے گئے. اجلاس میں صوبائی اسمبلی کے خطوط کا بھی جائزہ لیا جائے گا. جسٹس شاہد کریم نے ریمارکس دیے. سیکشن 173 کے تحت الیکشن کمیشن نے فیصلہ دیا. سیکشن 173 کے تحت کون فیصلہ کر سکتا ہے؟ الیکشن کمیشن سزا ہونے کے بعد کسی کو نااہل قرار دے سکتا ہے. کراچی میں این اے 231 کے 4 پولنگ سٹیشنز میں ڈالے گئے ووٹوں کی دوبارہ گنتی جاری. الیکشن کمیشن میں دونوں کی گنتی کے دوران بدنظمی، مشتعل افراد کی الیکشن کمیشن کے دفتر میں توڑ پھوڑ، پولیس اور رینجرز کی بھاری نفری کو طلب کر لیا گیا. پاکستان میں اعلیٰ قیادت سے ملاقاتیں خوشگوار اور مؤثر رہیں. معاہدوں اور یادداشتوں پر دستخط ہوئے. سعودی وزیر کا پاک عرب سرمایہ کاری فورم سے خطاب. خالد بن عبدالعزیز الفالح نے کہا بزنس ٹو بزنس ملاقاتیں سود مند ثابت ہوئیں. سعودی عرب معاشی استحکام میں پاکستان کی مدد کرنا چاہتا ہے. مفاہمت کی 27 یادداشتوں پر دستخط سفر کا محض ایک آغاز ہے. سعودی وزیر سرمایہ کاری نے دورے میں صدر آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف اور آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر سے ملاقاتیں کی. پاکستان اور سعودی عرب میں 2.2 ارب ڈالر مالیت کی 27 مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط ہو گئے. معیشت، زراعت، کان کنی، تعمیرات اور انفارمیشن ٹیکنالوجی سمیت مختلف شعبے شامل. وزیر اعظم شہباز شریف نے تقریب سے خطاب میں کہا برادر اسلامی ملک کی سرمایہ کاری کا خیر مقدم کرتے ہیں. معاہدوں پر عمل درآمد یقینی بنائیں گے.
मुस्तकबिल में पाक सऊदी अरब इक्तिसादी रवाबित और ताउन मजीद बढ़ेगा, मुआहिदे नई पेशरफ्त हैं। वजीर सरमायाकारी खालिद अब्दुल अजीज अल फाले ने सऊदी मईशत को परवान चढ़ाने में अहम किरदार अदा किया। IMF से कर्ज प्रोग्राम में भी सऊदी अरब ने अहम किरदार अदा किया। खित्ते में अमन और खुशहाली के लिए पुरज़्म है। पाकिस्तान और तुर्कमानिस्तान के दरमियान बरादराना ताल्लुकात हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का तुर्कमानिस्तान के कौमी शायर मखदूम गिल्ली फरागी की 300वीं सालगिरह पर बैनुल अक़वामी फोरम से खिताब। कहा, मखदूम गिल्ली फरागी तुर्कमानिस्तान के लोगों के जज्बे, उमंगों, हुब्बुल वतनी की इलामत हैं। मखदूम गिल्ली ने अपनी जिंदगी तुर्कमानिस्तान के अवाम को मुत्तहिद देखने के ख्वाब के लिए वक्फ की। दौरे के दौरान सदर मुमलिकत की तुर्कमानिस्तान की सीनियर क़यादत से मुलाकातें भी शेड्यूल। IMF की मजीद शराइत सामने आ गई। पाकिस्तान को नए प्रोग्राम के तहत मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम और काबिल अमल मुआशी पॉलिसियों के लिए काम करना होगा। हुकूमती मलकियती इदारों में इस्लाहात को तेज करने का भी कह दिया। हुकूमत को टैक्स आमदन बढ़ाना और अखराजात में कमी करना होगी। मौसमियाती तब्दीलियों का मुकाबला करने के लिए एक्शन प्लान तैयार करना होगा। आलमी मालियाती इदारे का पाकिस्तान से माजी में IMF के साथ तय करदा इस्लाहात पर अमल दरामद न करने का भी शिकवा। अदालती इस्लाहात आईनी तरामीम पर मुशावरत के लिए बिलावल भुट्टो पार्लियामेंट हाउस पहुंच गए। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं में अदालती इस्लाहात के लिए आईनी तरामीम पर मुशावरत तय पाया। आईनी तरामीम पार्लियामेंट में पेश करने का फैसला मुशावरत से किया जाएगा। तारीख का तयन दोनों जमातें दीगर पार्टियों से मुशावरत के बाद करेंगी। मजमूई सियासी सूरत हाल और मुल्क को दरपेश मसाइल के हल पर भी तबादला ख्याल। बिलावल भुट्टो और नवाज शरीफ की मुलाकात पंजाब हाउस इस्लामाबाद में हुई। हुकूमती इत्तेहाद आईनी तरामीम पर मौलाना फजलुर रहमान को बनाने के लिए कोशा। पीपल्स पार्टी के वफ्द की JUI के सरबराह से मुलाकात। मौलाना फजलुर रहमान को उनकी तजावीज तस्लीम करने की सूरत हाल से आगाह किया। PTI के पास प्रोपेगेंडा सेल है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है, लोगों को तौहीन के लिए ये प्रोपेगेंडा सेल इस्तेमाल होता है। आज सब चीजें अदालत के सामने पेश की गई। PTI के सोशल मीडिया सारिफीन इदारों को धमकाते हैं। एक एक बंदे के नाम पर जाली अकाउंट्स बने हुए हैं। अब इस केस में लीगल प्रोसीडिंग्स शुरू होंगी। लाहौर हाईकोर्ट में अज़मा बुखारी की फेक वीडियोस के खिलाफ केस की समाअत। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट जस्टिस आलिया नीलम ने दरखास्त पर समाअत की। चीफ जस्टिस की FIA की तहकीकात की तारीफ। रिमार्क्स दिए, तफ्तीश जारी रखें और रिपोर्ट ADR जुडिशल के रूबरू जमा करवाएं। पंजाब के 9 शहरों में दफा 144 नाफिज। लाहौर, मुल्तान, साहिवाल, सरगोदा, गुजरांवाला, विहाड़ी, पाकपतन, ओकाड़ा और वजीराबाद शामिल। हर किस्म के सियासी इज्तिमात, धरने, जलसे, मुजाहरे, एहतजाज पर पाबंदी आयद। दफा 144 का निफाज 12 अक्टूबर तक रहेगा। रावलपिंडी में दफा 144 17 अक्टूबर तक रहेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद एयरपोर्ट की आउटसोर्सिंग के लिए बोली दहिंदा की शिकायत का नोटिस। तहकीकात के लिए नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की सरबराही में आला सतह की कमेटी तश्कील दे दी। सेक्रेटरी वजारत खार तिजारत और चेयरमैन फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू कमेटी मेंबरान में शामिल। इस्लामाबाद एयरपोर्ट की आउटसोर्सिंग के बाद एयरपोर्ट्स अथॉरिटी की एक और मंसूबे में मनपसंद कंपनी को नवाजने की कोशिश। तेज तरीन इमिग्रेशन के लिए ई गेट्स मंसूबे के टेंडर की तारीख में तीसरी बार तौसी कर दी। पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी की नाअहली। मुल्क के 8 हवाई अड्डे गैर फाल होने का इंकशाफ। 33 में से 8 एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन बहाली में अथॉरिटी बुरी तरह नाकाम। गैर फाल हवाई अड्डों पर अमला भी तैनात। हर माह तनख्वाहों की अदायगी और दीगर अखराजात इदारे पर बोझ बन गए। बन्नू, दालबदीन, पाराचनार, खुजदार, रावलाकोट, मुजफ्फराबाद, सैदो शरीफ, सेहवन शरीफ और सिब्बी एयरपोर्ट पर बरसों से फ्लाइट ऑपरेशन बंद। रावलपिंडी में डेंगू मच्छरों के हमलों में शिद्दत आ गई। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 114 अफराद में डेंगू पॉजिटिव होने की तस्दीक।
अस्पतालों में जेर इलाज डेंगू पॉजिटिव के मरीजों की तादाद 221 हो गई। महकमा सेहत के मुताबिक अब तक डेंगू से मुतासरा कंफर्म मरीजों की तादाद 2504 तक पहुंच गई। रवां सीजन में डेंगू से 10 मरीज जिंदगी की बाजी हार गए। मौसम में तब्दीली की रुत, रातें खुशगवार, सूरज की तपिश में भी कमी। शहर कायद में मतलब जुज़वी बरालूद, मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का इम्कान। आज भी दर्जे हरारत 37 डिग्री तक जाने की पेशगोई। गुज़श्ता रोज कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश के बाद सड़कों पर कीचड़ और पानी ताहाल मौजूद। इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर समेत अक्सर शहरों में सुबह और शाम के औकात में खुनकी बढ़ने लगी। समंदरी तूफान मिल्टन अमेरिका की रियासत फ्लोरिडा के साहिली इलाकों से टकरा गए। मुतासरा इलाकों में 195 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से तूफानी हवाएं। मुतासरा इलाकों में 6 लाख अफराद बिजली से महरूम। 72 लाख मकीनों को इलाका खाली करने की वार्निंग। अमरीकी सदर जो बाइडन के मुताबिक फ्लोरिडा की 100 साल तारीख में यह सबसे बड़ा तूफान है। इसराइली जरहियत से मशरिक़ वुस्ता का अमन तार तार। वस्ती बैरूत में इसराइली फजाइया का बड़ा हमला, मजीद 18 अफराद शहीद, 92 जख्मी हो गए। गुंजानाबाद नोएरी के रिहायशी इलाके में हिजबुल्लाह की सीनियर शख्सियत को निशाना बनाए जाने का खदशा। मुज़ाफ़ाती इलाकों से इनखिला की वार्निंग भी जारी। खान यूनिस में इसराइली बमबारी से 5 फलस्तीनी शहीद, 7 माह के शीर खार समेत 3 बच्चे शामिल। जबालिया पनाह गुज़ीन कैंप पर सिहूनी फौज के फजाई हमले में 3 शहादतें। इसराइल ने गजा में अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेरे इंतजाम स्कूल बंद करा दिए। शिमाली गजा में अस्पतालों को भी खाली करा लिया गया। ईरान ने अमरीकी इत्तेहादियों को वार्निंग दे दी। हमले के लिए जिसकी फजाई या जमीनी हदूद इस्तेमाल हुई वो निशाने पर होगा। इसराइल ने नेवातम एयरबेस और इंटेलिजेंस अड्डे पर ईरानी मिसाइल गिरने की रिपोर्ट देने वाले अमरीकी सहाफी समेत 5 सहाफियों को हिरासत में ले लिया। दौरान जंग दुश्मन की मदद करने का इल्जाम आयद। सैकड़ों इसराइली फौजियों का गजा में ड्यूटी से इनकार। आर्मी चीफ के नाम खुले खत के जरिए गजा में जंगबंदी तक ड्यूटी से मासरत, फौरी जंगबंदी और यरगमालियों की रिहाई पर जोर दिया। फिल्मी दुनिया के सुपरस्टार अमिताभ बच्चन ने जिंदगी की 82 बहारें दी। 5 दिहाइयों पर मुहित अपने करियर में बहुत सी सुपरस्टार फिल्में दी। फिल्म इंडस्ट्री में बिग बी के नाम से जाने जाते हैं। 11 अक्टूबर 1942 को इलाहाबाद में पैदा हुए। 1969 में फिल्मी दुनिया में कदम रखा। अपनी जानदार आवाज और फनकारी से सबके दिल मौ लिए। मशहूर फिल्मों में शोले, शहंशाह, लावारिस, खुदा गवाह, इंसानियत, कभी खुशी कभी गम, मोहब्बतें, सरकार राज शामिल।